مولانا نے حضرت علی اصغر، حضرت عباس عالمدار، بی بی سکینہ اور کربلا کے अन्य شہیدوں کی دردناک شہادت کا ذکر کیا تو پورا امام باڑہ غم کے ماحول میں ڈوب گیا۔ عقیدت مندوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور ہر طرف یا حسین، یا سکینہ، یا عباس کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مجلس کے دوران موجود لوگ غم حسین میں گریہ و زاری ہو گئے اور ماحول پوری طرح رنج و غم سے بھر گیا۔ مجلس کے بعد نوحہ خوانی اور سینہ زنی کا سلسلہ شروع ہوا۔ مشہور نوحہ خوانوں نے درد بھرے نوحے پیش کیے جن پر انجمنوں اور عزاداروں نے پرسہ دیتے ہوئے سینہ زنی کی۔ اس کے بعد جلجناح پورے ادب اور احترام کے ساتھ برآمد ہوا۔ راستے بھر عقیدت مند جلجناح کی زیارت کرتے رہے اور جگہ جگہ سبیلوں و لنگر کا بھی انتظام کیا گیا۔ اس اوسر پر مولانا سجاد بھی عزاداروں کو خطاب کرتے ہوئے امام حسین کی سیرت پر عمل کرنے اور سماج میں انصاف، بھائی چارے اور انسانیت کا پیغام پھیلانے کی اپیل کی۔ کارکرم میں امام باڑہ کلی خاں کے متولی عارف رازی سہیت حاجی رئیس حیدر، رضا حیدر، بابر علی، گلفام حسین، نعیم قادری، گلزار حیدر، عرفان حیدر، جاوید علی، مراد علی، رفیق حسین، ظفر عباس، ظہیر عباس، راجہ علی، انیس حیدر، ذوالفقار حیدر، مولانا سجاد، مولانا عقیل، شفیق حیدر، غلام شمشیر علی، قاسم راجہ، انور علی، ناظم حسین سہیت بڑی سنکھیا میں عقیدت مند موجود رہے۔ کارکرم کو سفل بنانے میں انتظار عباس اور अन्य سہیوگیوں کا وشیش یوگدان رہا۔ مولانا سید منظور علی نقوی، دھرم گرو، مراد آباد۔ کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق اور انصاف کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ امام حسین کی شہادت پوری انسانیت کے لیے ایک ایسی مثال ہے جو ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ دیتی رہے گی۔ 9 محرم کی شب امام باڑہ کلی خاں سے عقیدت کے ساتھ برآمد ہوا جلجناح۔ مجلس میں امام حسین کی عظیم قربانیوں کا ہوا بیان۔ یا حسین کی صداؤں سے گونج اٹھا ماحول۔ مراد آباد میں 9 محرم کی رات شہر کے ایتہاسک امام باڑہ کلی خاں میں عزاداری پورے احترام، عقیدت اور غمگین ماحول میں آیوجت کی گئی۔ بڑی سنکھیا میں عقیدت مندوں نے مجلس میں شرکت کر حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس کے اپرانت جلجناح کا جلوس پرمپراگت انداز میں برآمد ہوا جس میں یا حسین، یا سکینہ اور یا عباس کی صداؤں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ مجلس کو خطاب کرنے کے لیے امروہہ سے تشریف لائے مولانا سید منظور علی نقوی نے اپنے بیان میں کہا کہ کربلا کا واقعہ کیول ایک ایتہاسک گھٹنا نہیں بلکہ انسانیت، صبر، حق، انصاف اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا ہمیشہ زندہ رہنے والا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین نے اپنے 72 جانثار ساتھیوں اور اپنے اہل بیت کی قربانی دے کر اسلام کی بنیاد کو اور یہ بتا دیا کہ وقت کی مشکل نہ آئے، کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امام باڑہ مرزا محمد قلی خاں ہے جو 300 سال پرانا امام باڑہ ہے۔ یہاں پر 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک مجالسیں ہوتی ہیں جس کا شیڈیول رات کو 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک رہتا ہے۔ آج 9 محرم ہے۔ 9 محرم میں یہاں پر زلزلے کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہاں سارے مقامی لوگ، ہر برادری کے لوگ شامل رہتے ہیں۔ یہ پروگرام سبھی لوگ بہت ہی خلوص اور محبت سے مناتے ہیں۔ پرشاسن کی ہمارے لیے بہت مدد رہتی ہے۔ سبھی پرشاسن یہاں پر چھوٹے ادھیکاری سے لے کے بڑے ادھیکاری تک بیچ بیچ میں آتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری کسی بھی پریشانی کے لیے ہر وقت کھڑے ہیں اور ہمیں ان سے بہت سہیوگ ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منظور علی نقوی ہے اور امروہہ سے میرا تعلق ہے اور انشاءاللہ ماہ محرم میں پورے عشرے میں یہاں موجود رہا اور یہ عزاداری کا ایک سلسلہ جو پیغام امام حسین کے سلسلے میں سے ایک جز ہے اور الحمدللہ وہ پیغام جو کربلا سے ملا تھا اتحاد کا، اس شکل کو واقعاً یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مذہب، کوئی فرقہ جو ہے، کوئی فرق یہاں پر نظر
नहीं आता और सब लब्बैक या हुसैन की सदा में अपने आप को मगन किए हुए हैं। क्या आज मजलिस पढ़ी गई थी, क्या कहना चाहिए, किस पर रोशनी डाली गई? जी, जिसमें सबसे अहम चीज़ है पैगाम इमाम हुसैन को लेकर बात हुई, क्योंकि इमाम हुसैन का ख़ुद करबला से निकलना और उस वक्त कहना कि मैं जा रहा हूँ ताकि अपने जद की उम्मत की इस्लाह करूँ, यानी ख़ुद इमाम हुसैन का मकसद इस्लाह था। और यही वजह थी कि जब करबला पहुँचे तो करबला पहुँचने के बाद बार बार वो पैगाम जो कुरान का पैगाम था, जो सुन्नत नबी का पैगाम था और दीगर जो पैगामात जो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से मुसलसल कुरान और सुन्नत के हवाले से रहे, वो चूँकि करबला से पहले उन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा था, तो इसी वजह से इमाम करबला आए और उसी पैगाम को आज बयान किया गया कि बताया गया कि इमाम हुसैन ने करबला आके जो सबसे पहले याद किया वो ख़ुद नमाज, कुरान की तिलावत और सुन्नत की नबवी को अहमियत दी जाए। यही अहम तरीन पैगाम करबला रहा है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कल 10 आशूर है, किस तरीके से किस तरीके से सबसे अहम तरीन पैगाम यही है कि करबला ने जो हमें दर्स दिया है वो इत्तिहाद का दर्स दिया है, वो ऐसे यूनिटी का दर्स दिया है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि इमाम हुसैन खुद जिस लश्कर को आमादा करके चले थे उसमें हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ना कोई था। कोई उस्मानी मज़हब का था, कोई नसरानी था। ये क्यों? ताकि बताने के लिए कि हुसैन का पैगाम इत्तिहाद का पैगाम है और एक ऐसा पैगाम है कि जिसमें इंसानियत का दर्स दिया जा रहा है। इसी वजह से कल आशूर है, यकीनन वो दिन है कि जिस दिन हर हुसैनी का दिल जो है वो गमज़दा रहता है, और इसलिए जो पैगाम हमें देना है वो हमें इंसानियत का पैगाम देना है, चाहे वो अखलाक के ज़रिए, चाहे वो किसी को पानी पिला के भी, कि अगर किसी प्यासे तक पानी पहुंचा रहे हैं, ये भी इमाम हुसैन के पैगामात में से एक पैगाम है। जो हमें सबसे अहम तरीन दर्स, जहाँ मैं अपनी बात ज़्यादा लंबी ना करूँ, तो वही कि हमें यूनिटी को रखना है ताकि सामने वाला हमें देख कर कहे कि ये हुसैनी जा रहे हैं, न कि कोई ऐसा सोचने में पड़ जाए कि हुसैन इब्न अली का मकाम अलग था और ये उस मकाम पर नहीं आ रहे। जैसे कि देखा गया है हज़रत सैयद अली खामनेई साहब की शहादत के बाद से शिया सुन्नी एक साथ हो गए, एक प्लेटफॉर्म नफरत की आगे बुझ चुकी थी, वो खत्म हो गई है, एक साथ वो लोग अब आ चुके हैं। वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैंने अर्ज़ किया कि जिसने भी करबला से इंसानियत का दर्स लिया, और इंसानियत का पैगाम सबसे पहले यही होता है कि जहाँ भी मज़लूम होंगे उनकी हिमायत के लिए खड़ा होना, और इसी चीज़ को जो अमली और इस चीज़ को करके दिखा रहे थे, उस शख्सियत का नाम सैयद अली खामनेई है और रहबर मौज़म। यकीनन उनकी पूरी ज़िंदगी अगर हम देखें तो हर लम्हे उन्होंने अपने किरदार से बताया कि हम हर मज़लूम के साथ हैं, चाहे वो ईरान का रहने वाला हो, चाहे वो किसी भी मुल्क से रहने वाला हो, फ़लस्तीन हो, गाज़ा हो, इन तमाम मामलात में आपका मुसलसल बयान देना इस बात की दलील थी कि आप इंसानियत का पैगाम दे रहे थे। और इसी वजह से जो उन्होंने आखिरी जो जुमला था, जो वही जुमला कि जो हुसैन इब्न अली ने करबला की तरफ आते हुए कहा था, मिसली ला युबाउ मिसला, कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करेगा, यही पैगाम करबला को लेते हुए आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने यही पैगाम दिया था कि जिस तरह करबला में इमाम मजलूम ने शहादत कबूल की मगर जालिम के साथ खड़ा होना बर्दाश्त नहीं किया, मजलूम के साथ खड़ा होना अपने लिए अहम करार दिया, और यही काम नज़र आया कि उनका बार बार गाज़ा और फ़लस्तीन और मजलूमों के लिए आवाज़ बुलंद करना यही वजह बनी कि जालिमों की आँख के कांटा बन के रह गए, और खुदाबंद मुताल ने शहादत जैसा मर्तबा उनको नसीब दिया। अभी देखा गया था कि 7 तारीख के अंदर जुलूस निकाला गया था, 7 तारीख में जुलूस निकाला गया था, एक तरफ क्या कहते हैं हिंदुस्तान का झंडा था और एक तरफ इमाम हुसैन। ये लगता है कि हुसैन की आज़ादी मुझसे वफादारी, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, एक अहम चीज़ जो लगाव है, खुद हिंदुस्तान से इमाम हुसैन ने भी जिक्र किया, जो रिवायात मिलती हैं कि मुझे हिंद जाने दो। क्यों जाने दो? क्योंकि वहाँ इंसान रहते हैं। ये एक जुमला तारीख़ में लिखा गया और यकीनन एक ऐसा जुमला है कि जो बता रहा है कि हमारे दिल एक इंसानियत के दर्द से इस तरह भरे हुए हैं कि जब इमाम मजलूम ने हमें याद किया है तो हमारे लिए भी जो जिम्मेदारी हमारे लिए हो जाती है वो यही कि उसी इंसानियत के दर्स को हम ले और दूसरों तक पहुंचाते चले। मेरा आखिरी सवाल हो रहा है, कल 10 आशूर है,
लोग इसे मेले की शक्ल में देखते हैं, कुछ लोग नुमाइश लगाते हैं, जैसे लंगर तकसीम छतों से करते हैं, बोर्ड लगा लगाते हैं। उन अवामी जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अकीदती मसला है और हर कोई अपनी अकीदत के एतबार से इमाम मजलूम को याद कर रहा है, और इसमें जिस तरह ये कहा जाए कि मसलन वो लंगर तकसीम कर रहे हैं या एक उर्स की शक्ल दे रहे हैं कि उसमें खुशी का इजहार भी नज़र आ रहा हो, दर हकीकत जो पैगाम है वो यही पैगाम है कि हमारे लिए, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला है, जो सबसे पहला दर्स इमाम मजलूम ने दिया है वो अहम तरीन दर्स है जो हमें अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। और वही दर्स यही है कि हमें हर वो काम करना है कि जिससे जालिम का आवाज़, जालिम की आवाज़, जालिम का परचम जो है वो अपने मकसद तक ना पहुंच पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुछ इस तरह की हरकत कि जो दीन के करीब नज़र नहीं आ रही, जो मकसद के करीब लेकर जाने वाली नहीं है, कहीं वो इख्तिलाफ का सबब ना बन जाए और वो इख्तिलाफ बजाय इसके कि हमें हुसैनी बनाए, हमें उन सफ़ों में ना लेकर चली जाए कि जो मकसद हुसैन की तरफ थे नहीं। तो लिहाजा हमें जो अहम तरीन मसला इसमें याद रख के रखना है और रोज़ आशूर के एतबार से भी वो ये कि हमें इत्तेहाद बना के रखना है और मकसद हुसैन जुल्म के ख़िलाफ़ होना, कुरान की तिलावत, नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार, नबूवत के पैगामात को आम करना है। तो लिहाजा अपने आप को उस तरह आमादा रखना है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। जी, मुझे हकीरपुर सज्जाद हुसैन गजीरी कहते हैं। जी, आज 9 मुहर्रमुल हराम है जो कि वाक़या करबला से मंसूब है और इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था हमें आज की रात मोहलत दी जाए ताकि हम इबादत खुदावंद मतान में बसर करें, कुरान और इस्तग़फ़ार और नमाज़ों की जो है कसरत से तिलावत कर सकें। और मसाइल में मौलाना ने यही बयान फरमाया, अमरोहा से आए हुए मौलाना सैयद मंजूर अली आबदी साहब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है इंसानियत का है, अमन का है, भाईचारे का है, इत्तेहाद का है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है वो यही तालीमात है कि कभी भी जालिम के आगे अपने सर को न झुकाना, बल्कि मजलूम के साथ रहना और जालिम के सामने डटे रहना। जी, कल रोज़े आशूर है जो कि बहुत ही गम का दिन है, और अगर एक इंसान है वो मुसलमान है और वो इंसान है वाकई में, तो वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को देखें कि अल्लाह के रसूल ने का क्या अमल था इस रोज़ जब सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत वाक़या हो गई। और रसूलुल्लाह की जो शहादत वाक़या हुई है, आपकी जो साल हुआ है वो 11 हिजरी में हुआ है। तो आपकी जो जोज़ा भी जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल 10 मुहर्रम की इस हालत में आए हैं मेरे सामने कि आपके सर पर जो है वो अमामा नहीं है और आपके जो गिरे यानी कि कुर्ता है, आपका जो कमीज़ मुबारक है उसके बटन खुले हुए हैं और आस्तीन उल्टी हुई हैं और आपके चेहरे पर गर्द पड़ी हुई है। और आप कह रहे हैं कि उम्मे सलमा तुम सो रही हो, तो मेरा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। और नबी करीम की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। तो हर एक मुसलमान जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान होने का दावा करता है, वो कम से कम इतना एहसास करे कि आज क्या दिन है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम कर रहे हैं तो उनकी उम्मत को बयान गम करना चाहिए। जी, ये पहली मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है जो कि 8 रबीउल अव्वल तक रहता है और 9 रबीउल अव्वल को जो है वो शौक तमाम हो जाते हैं और उसके बाद फिर मजलिस इख्तिताम पसीर हो जाती है। प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है, उनकी बहुत ही हमारे साथ जो है सपोर्ट रहती है हर एतबार से और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है हर बात का, जुलूस का भी और जुलूस के अज़ादारों का भी और तमाम रास्तों का भी, और उन सभी हर एतबार से जो है बहुत सपोर्ट की जाती है। जी जी, मैंने क्या कहा अभी कि पैगम्बर खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी का क्या अमल रहा उस दिन, यानी जब आपकी जोजा मुबारक ने सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को ख्वाब में देखा तो किस हालत में देखा
اب جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے, تو اس کا فریضہ بنتا ہے اسی حالت میں اس دن کو گزارے. یہ شور شرابہ, ہلڑ ہنگامہ, ڈھول تاشے, لنگر نیاز وغیرہ کریں, لیکن اس کو ادب و احترام کے ساتھ. کیونکہ یہ کس ذات سے منسوب ہے, کیونکہ رشی کی تو ویسے بھی ادب و احترام ہونا چاہیے, لیکن یہ کس سے منسوب ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے, علی مرتضیٰ کے فرزند, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دلبند. اس کو تو ویسے بھی احترام ہونا چاہیے. آپ نظر کریں, لنگر کریں, اس کو بیٹھ کر کے تقسیم کریں, کھائیں, بہت ادب و احترام کے ساتھ کھلائیں, بانٹیں, لیکن اس کی بیعت بھی نہ کریں. جی, یہ تعلیمات نبی اور آل نبی علیہ السلام ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس سے وفاداری ضروری ہے. کیونکہ مذہب اسلام ہم یہی سکھاتا ہے کہ اگر اپنے ملکوں کے غدار ہیں تو وہ اسلام کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا. یہی تعلیمات اسلام ہے, یہی تعلیمات رسول ہے, اور یہی تعلیمات امام حسین علیہ السلام. ایک نعمت ہے قسم کھانے کا پوری سے سورہ فجر فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اس رات کو جس رات میں ہم بیٹھے ہیں, اس رات کی قسم خدا کے رب سے کھا رہا ہے. کو کہنا کھا رہا ہے. آخر 10 راتیں کون سی تھی؟ سوال ہو 10 راتیں کون سی تھی؟ بات کہتے ہیں کہ یہ 10 راتیں وہ تھی کہ جناب موسیٰ کوئی ریٹ میں گئے تھے, پر انتظار میں اس میں 10 راتیں جو اہم قرار دی تھی اسی قسم کھائی. ٹھیک ہے, رجب کے آخر کے 10 دن قسم کھائی, رمضان کے آخر کے 10 دن توجہ ہے نا, رمضان کے آخر کے 10 دن اعتکاف کرنا ہے, منزل میں آنا, توجہ ہے نا. آگے آؤ, حج کے لیے جا رہے ہو, پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک اہم ترین دن, لیکن سوال وہی ہے پھر یہ 10 دن محرم کے کیوں عالم ہے؟ کام مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے جز اور ایک ہوتا ہے اصل. جز کیا ہے؟ کہا رجب کی 10 راتیں جز ہیں, رمضان کی 10 راتیں جز ہیں, شعبان کے ایام جز ہیں, ذی الحج کے ایام جز ہیں, لیکن اصل کہاں ہے؟ اس کا ریشہ کہاں ہے؟ کہا اس کا ریشہ ہے کربلا کی 10 راتیں. توجہ سنیے گا, یہ کربلا کی 10 راتیں کیوں؟ کہا اگر یہ 10 راتیں نہ ہوتی تو نہ رجب باقی رہتا, نہ رمضان باقی رہتا, نہ خانہ کعبہ کی عظمت باقی رہتی. ایک نعمت ہے, ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بخشوانا چاہو تو انسان, اور ایک وجہ ہے تو حضرت ابن علی جو آخری بات کر رہے ہیں, عاشور سب کو اکٹھا کیا, کیونکہ آج ہی کا ٹارگٹ تھا شب کا کہ شب میں حملہ ہوگا, تاکہ صبح تک کربلا میں کیا ہو گیا کسی کو پتہ نہ چلے. ایمان واقعی ہے ہر لمحے سے, ہمارے دل ایمان سے چاہے دور ہے, مگر ایمان ہمارے دلوں کے راز سے واقعی ہے. امام نے بھیجا عباس جاؤ اور چاہ کر رات کیا وقت معین جو کیا گیا ہے اس کو اگلے دن کے لیے تبدیل کرو یا تپاس کرو. اب جو وقت محنت ملی نا تو یہ جملہ تاریخ اور مقاتل نے انسان کی آخری خواہش کو کیا خواہش کرے گا, گھرتی خواہش کرے گا جو اس سے زیادہ پسند ہے. توجہ ہے نا, وہ خواہش کرے گا جو سب سے زیادہ پسند ہے. آج کی شب ایمان نے 2 بار کا نام کیا, ایک تمام صحابے کو جوڑ کر بلا کر سب کو بلا کے, اور ایک بار خطبہ کیا. میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رہوں گا تاکہ حجت تمام ہو. پہلے کا خطاب کر کے کہا
में सबसे ज्यादा महबूब क्या है? तो सुनो, मेरे नजदीक आपको सलात, नमाज सबसे ज्यादा महबूब है। तो सुने ना, सबसे ज्यादा महबूब का नमाज व तिलावत किताब, कुरान मजीद की तिलावत व कसरत दुआ व इस्तिग़फ़ार, खुदा की बारगाह में दुआ और इस्तिग़फ़ार है। नबी इमाम बता रहे थे, तुम आए हो मुकाबले में, जबकि जान लो तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मारी जाएंगी। मैं वो हूँ जिसे नमाज भी जाती है और नमाज को मैं भी जाता हूँ। और इस्तिग़फ़ार बहुत पसंद है। उसके बाद खिलाफ किया, खिलाफ करके हम अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की हम्द सना है, अल्लाह एहसान अल्लाह, इसके अता किए हुए एहसान होता है। शुरुआत हम्द सना से, कुल अल्लाहुम्मा इन्नी अहमदुका अकरमतना बिन्नबिल्लाह, कि परवरदिगार तेरा शुक्र है, तू ही है जिसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का अहदा अदा किया। जुमले ज़हन में रखिएगा, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, ये पैगाम दे रहे हैं, ये बात जो कर रहे हैं ना, मैं कह चुका हूँ यहाँ मजालिस में इजराइल में कि इमाम का खिताब दर हकीकत करबला का महबूब रखने वाला पैगाम नहीं था, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर हुसैन के लिए ये पैगाम था। अकरमतना बिन्नबुव्वा, कि वो है कि जिसने नबूवत को मोहम्मद मुस्तफा के लिए करार दिया, तो है ना, फिर कहा वअल्लमतना बिल कुरान, और ये वो है कि जिसने कुरान का इल्म दिया, तो है ना, वफ़क़हना फिद्दीन, और वो है कि जिसने दीन को हम तक पहुंचाया। यानी यहाँ से पैगाम दे रहे हैं, ये मुख्तसर तीन जुमले पूरी करबला को समेट रहे थे। तुम समझ लेना, हुसैन इब्न अली तो करबला में आए थे, मकसद नबूवत है, मकसद किताब इलाही है, मकसद दीन है। यानी तुम आए हो तर हकीकत हुसैन के मुकाबले में नहीं आए हो, बल्कि सुन्नत के मुकाबले में आए हो, किताब इलाही के मुकाबले में आए हो, इस दीन के मुकाबले में आए हो। कि तुम्हारा यहाँ आना तर हकीकत क्या है कि हुसैन इब्न अली के मुकाबले है, बल्कि खुद किताब इलाही के मुकाबले है, बल्कि उस सुन्नत नबवी के मुकाबले में आए। कहा ना, इन्ना सुन्नत ततबल्लता वइन्ना बिदअता ततबल्लता, कि इन्होंने सुन्नतों को मार दिया है, इन्होंने बिदअतों को जिंदा कर दिया है। अब मुझे खुदा पर जरूरी है, वाजिब है कि मेरा पैगाम मैं करबला का पैगाम हम आज बैठे तर हकीकत उस पैगाम को जिंदा करके कभी फर्श रज़ा तर हकीकत तनहा फर्श नहीं है, बल्कि वो मकान है कि जहाँ पर जिक्र हुसैन होता है और जिक्र हुसैन में पैगाम हुसैनी दिया जा रहा हो, तो तुम जो हमारे हैं कहीं दिल खुदा इस दिल को वो हरा दे देता है कि दुनिया खत्म होती मगर ये दिल जिंदा है। जरूरत है कि पैगाम हमारे हाथ में हो, जरूरत है कि पैगाम हमारे पास हो। शब आशूर नजारा वक्त में हुआ, आज की शब को मामूली शब नहीं है, इस शब को खुद इमाम ज़माना ने याद किया।
इमाम ने आज की शब्द में चिराग को खामोश किया था कि देखो जिसको जाना हो चला जाए, किसी को रोका नहीं जाएगा, और जिसका हाथ पकड़ के जाना हो चले जाओ, रोकना नहीं है, जिसको जाना है चला जाए। लेकिन जब चिराग जलाया गया और तमाम नबी असहाब को उसी मकाम पर देखा, तो इमाम का जुमला कितनी कयामत खेज होगा कि मुझे वो सहाबा मिले जो न मेरे बाबा को मिले, न मेरे नाना को मिले। ये कैसे हुए? ये कैसी शख्सियत है? तारीख के मरहल हसरत देखी, हर खानदान एक अलग ही रूप था। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को नहीं बैठी हुई थी, अब्बास अपने शागिर्दों के लिए बैठे हुए, अंसार अलग जमा थे, और सबने बात क्या हो रही है? बात हो रही है कि अभी कल हमें जाने ऐसा काम करना है कि जिससे हमारे आका हमसे खुश हो जाए। मेरे बच्चों, अपने आप को हमारा रखो, कल कुर्बानी देगी, कल अमर जान पर कुर्बानी देगी। मेरे बच्चों का इमाम जान पर कुर्बानी देगी है। तो बच्चों, क्योंकि ये बात गुजर रही है, ये बात गुजर रही है। हर किसी के दिल में एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश ये है कि सब हो तो कहीं ऐसा न हो कि इमाम को कहना पड़े कि तुम चले जाओ, बल्कि हमें अपने आप को इस तरह आमादा करना है कि मौला को ये कहने की भी जहमत ना दिए कि फला चले जाओ। ये तरबियत मुशर्रफ की इस तरह आवाज तारीफ करती है कि जब रोज़े आशूर आना, रोज़े आशूर, अब वो वक्त जब शहरा का जाने का सिलसिला शुरू हुआ, एक जा रहा है, सब आ रहे हैं, मौला मैं जाना चाह रहा हूँ, मौला मुझे इजाजत दे दे, आका मुझे इजाजत दे दे, तो मुझे इजाजत दे दे, जाओ चलो जाओ जाओ। लेकिन जो तारीफ जो मकामी के जुमले हैं कि जब सबसे कुछ लेना हो जाओ, तो इमाम हर सहाबी के पीछे पीछे चलते आ रहे, पीछे पीछे चलते आ रहे। और जब साहिब पूछता है तो मौला आज यहाँ क्यों कर रहे हैं? आप आराम करें, आप खैर में रखें, आप पर क्या है? लेकिन इमाम का जुमला बड़ी कयामत खेज है। इमाम ने कहा तुम नहीं जानते, तुमने हुसैन पर उस वक्त एहसान किया जब ना मदीने में कोई हुसैन के साथ था, ना मक्के में कोई हुसैन के साथ था। आज आपने सबके मसाइल सुने, शहीद हो गए, कासिम भी शहीद हो गए, अभी सब शहीद हो गए। अब वो वक्त आ गया कि जब हुसैन का जहां तो बात मत करेगा, कोई मसाइल देना चाहता हूँ कि तुझे हुसैन की अभी करता है। अब आवाज हर दिन ना से कोई है जो मेरी मदद के लिए आए। कभी इतना कहना था, एक कोहराम मचा खैमे में, इधर खैमे में जब कोहराम मचा तो क्या देखा? पता चला कि अली असगर ने अपने आप को चूल्हे से गिरा दिया। कहते हैं झूले से गिरा दिया, मारा आने का डॉक्टर लाल बच्चों को भी आगोश मिले, ताकि के बच्चों को आगोश मिला ना मालूम कान में क्या कहा। अब वो बच्चा के जो पिछड़ रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट है, मकाते के जुमले हैं, बच्चे को लेकर चले। अब जब बच्चे को लेकर चले तब उस मकाम पर पहुंचे कि जहां से सबसे इशारा करके कहा कि मैं इस बच्चे को लाया हूं और लोग इसे पानी पिलाएंगे। अगर 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 तुम्हें लगता है कि हुसैन को इस जमीन पर निकाल देता है, अल्लाह अकबर, मकाती लिखते हुए कलम तोड़ लगे हैं। कहते हैं अगर उस जमीन की तपिश को देखा जाए तो लिखने वाले लिखते हैं उस जमीन की कैफियत ऐसी थी, तपिश इतनी
आक्रोशन देने के बाद तुम्हारा अशीरा की तरफ इशारा करके कहा मेरे लाल अब तुम खुद हजरत का मेरे लाल खुद हजरत का नाम करो। क्योंकि जब मैं हजरत का नाम करने को कहा ना अली असगर ने अपनी सूखी जबान जैसे ही तीर को चलाना चाहा तीर होकर गिर जाता तब दोबारा तीर को चलाना चाहा दोबारा तीर ही गया। शब्द कहता है अगर कोई मुझसे पूछे कि किसी की आंख में पट्टी बांधी जाए और उसे कहा जाए कि निशाना लगा फॉर्मूला तेरा निशाना कभी नहीं खराब होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि तीर चला रहा मगर तीर कर रहा हो मैं जवाब दिया और मैं तीर को लगा रहा हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि बच्चे के आगे एक ज़रीफ़ा है जो चादर को फैलाई खड़ी है और क्या हो गया अरे सब्र कर अरे ये बच्चा वो है कि जिसे 3 दिन से अरे माँ का दूध भी नहीं है। अल्लाह अकबर रिवायत कहती है कि अब हुआ है एक तीन भाई का तीर निकाला। तीन भाई का तीर अरब का सबसे भारी तीर अरब का सबसे भारी तीर का तीर की कैफियत ऐसा था जब होना से करबला के बाद पूछा गया है कि होना क्या करबला क्या लेके गए थे जो करबला के लिए तुमने वादा किया था। इसलिए मैंने 3 भाग के 3 तीर इंतजाम किए थे और इन तीनों तीरों को मैंने कई दिन तक जहर में डुबा के रखा था। मसला सुन सकेंगे अब मसला बता करने लगे मामले के बारे में शब्दाशी कहते कि मैंने 3 भाग के वादा किए थे जिनको कई दिन तक जहर में डुबा के रखा था और जहर की कैफियत ऐसी थी कि अगर उस जहर का एक कतरा भी पानी में या समंदर में या दरिया में डाल दिया जाए तो जहां जहां तक उस जहर का असर होता वहां की मछलियां मर जाती। बताते हैं तुमने पढ़ा कहते हैं इसलिए 3 भाई का तीर लिया। 3 भाई के तीर की कैफियत क्या है? इतना वजनी तीर है जो वजनी जानवरों को गिराने के लिए इस्तेमाल लगाया जाता है। तीर मारा जाता था ताकि एक तीर लगे और लगने के बाद वो जानवर गिर जाए। कहानी कहती है कि हुरमुला ने वो तीर चलाया। अरे ये तीर चला चलने के बाद जानवर से लगा दूसरी जानी से निकल कर हुसैन के बाजुओं पर लगा। अरे बाजुओं पर लगना था बच्चा मार दिया गोश ने। अरे वो मेरे हो गया हुसैन ने देखा कि मेरा लाल तो
शब आशूरा